The noblest pleasure is the joy of understanding. Hello everyone, I am Rahul Gujral. Welcome back to another video, and today the objective of this video is to solve or to analyze the question paper of 2024. Sir, which subject? You can see that we are talking about the business studies. So what about the business studies paper of 2024? Right, previous year question paper discussion we will do for the year 2024, right? So let us see the paper. Okay, so this is the paper. So you can see that the time allowed was 45 minutes, the maximum marks was 200, and the total questions were 50. Number and questions to be answered is 40. Now one thing you can see, now up till 2024, 45 minutes were given and questions were 40. But now this year this changed, and so out of the 50 questions you only have to attempt 40, whatever you like. But now it is not like that. There are 50 questions and you have to solve all the 50, right? Currently in present when we are talking, so we have 50 questions, we have to answer 50. Yes or no? So no options. So that is why every chapter becomes even more important, because there are no options here. Okay, but was the paper tough? Let's see that, you will get to know. Okay, so first of all, you can see the instructions. So these instructions were on the basis of the 2024. So as I said, we have to focus on the 2025 and 2026. But yes, the questions itself are important. So in this paper, we will focus more on the question and less on the instructions. So without any further delay, let us start with the question number 1. So you can see that identify the principle of management where Taylor pioneered the introduction of method of scientific inquiry into the domain of management practice. कि कौन से प्रिंसिपल में टेलर ने बोला कि that we have to do scientific inquiry. So as the name suggests, we are focusing on the science word, right? So we are focusing on the science, not rule of thumb, that everything should be analyzed in a scientific way. So every job should be done using scientific methods. So that was told by Taylor. Taylor ने बोला कि साइंस नॉट रूल ऑफ थंब का मतलब यही है कि हर चीज को आप साइंटिफिकली एनालाइज करो. Every work should be done using scientific method. Every work using scientific method. Yes or no? So that is how you have to see the question. So they have given you all the 4 principles of Taylor. So if you know the concept of each principle, so you can easily answer that, okay, 1 is the right answer here for the question number 1. Question 2 then. So question 2, ये आपकी सीयूटी में बहुत ज्यादा रिपीटेड होता है इस टाइप का क्वेश्चन, तो आपको ये भी समझना है किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं. चैप्टर कौन सा है, ऑफ कोर्स वी आर सीइंग, बट विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं. लाइक अगर आप इस क्वेश्चन में देखोगे तो आपको चार्ट दिया और आपको बोला है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कि ए का 1 होगा क्या, ए का 3 होगा क्या, राइट, ऐसे. एंड हाउ टू सॉल्व दिस, देखो कोई सी भी लाइन पढ़ो जिसके बारे में आप बिल्कुल श्योर, ठीक है. जैसे मान लो रेम्यूनरेशन शुड बी जस्ट एंड इक्विटेबल, यानी रेम्यूनरेशन बिल्कुल इक्विटेबल और जस्ट मतलब फेयर होनी चाहिए. सो ऑफ कोर्स वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज. नाउ वी नो दैट डी का तो 2 ही होगा. सो डी का 2 कहां पे है, ओनली 1 ऑप्शन हैज D2, सो हेंस 4th इज द करेक्ट आंसर. एक ऑप्शन से पूरा मैच द फॉलोइंग हो गया, भले आपको 3 और नहीं आते थे, बट स्टिल लेट अस सी द आंसर. ओके, A3, right, obedience to organizational rules is discipline, right. Then B4, if you talk about B4, one boss for every individual employee, that is unity of command. Then you see C1, one head one plan, unity of direction. So we can check that, assess that. So it was so easy, right. Question number 3, easy tha too. The aim of which technique given by Taylor is to reduce a given line or a product of fixed types, sizes and characteristics. देखो, जैसे टेलर ने 4 प्रिंसिपल्स दी थी, उसने 4 टेक्निक्स भी दी थी. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द टेक्निक्स गिवन बाय द टेलर, सो वी नो कौन सी टेक्निक ऐसी थी जो बोल रही थी कि प्रोडक्ट को फिक्स टाइप और साइजेस में रखो, एक स्टैंडर्ड सेट करो.
So hence the answer is standardization. Hence the answer is standardization of work. मेथड स्टडी नहीं हो सकता, टाइम स्टडी नहीं हो सकता, फंक्शनल फोरमैनशिप तो बिल्कुल नहीं हो सकता, जिसमें हमने 8 बॉसेस के बारे में बात करी थी, राइट. सो थर्ड इज द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क. पूरा नाम क्या था? स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन. सिंप्लीफिकेशन का मतलब क्या था बाय द वे? एग्जैक्टली एलिमिनेटिंग द सुपरफ्लुअस वेराइटीज. जो एक्स्ट्रा अननेसेसरी वेराइटीज है उनको हटा दो. क्वेश्चन नंबर 4. अगेन मैच द फॉलोइंग जस्ट लाइक दैट. तो प्रिंसिपल्स पे आप देख रहे हो कितने क्वेश्चन आ रहे हैं अभी, ठीक है. अगेन ढूंढो जो आपको पक्का श्योर. जैसे मान लो चेन ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम टॉप टू बॉटम. बिना देखे बता सकते हो वी आर टॉकिंग अबाउट द स्केलर चेन. बिना देखे यू कैन टेल दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द स्केलर चेन. तो सी का 4 होगा. नाउ सी कि सी का 4 कौन से ऑप्शन में? अगेन एक ऑप्शन से पूरा आंसर डन. Sometimes what will happen that C4 will arrive 2 or 3 times. So then we have to focus on one more option. ठीक है. तो मान लो we know that equity मतलब सबको equal treat करना, justice से treat करना. So emphasis, kindliness and justice. So B will be 2. You can see B 2 भी है. So hence that is how you approach. That is how you do the MCQs. Right? And अब आपका computer based test होता है. पहले OMR sheet पे सर्कल करके आना होता था. तो अब आपका वो टाइम भी बच रहा है. अब आपको क्या करना है? अब आपको सिर्फ कंप्यूटर पे जाके माउस से चूज करना है करेक्ट ऑप्शन क्या है. क्वेश्चन नंबर 5. अगर आपको कोई डाउट है तो हमें पता है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल मतलब एम्प्लॉइज टर्नओवर शुड बी मिनिमाइज, यानी कि एम्प्लॉइज ज्यादा चेंज नहीं होने चाहिए. आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए. एंड स्पिरिट द कॉर्प्स मतलब टीम स्पिरिट. Okay. Question 5. Under which dimension of business environment online booking of air ticket is included? We don't need the option. अगर आप कुछ ऑनलाइन बुक कर रहे हो तो कौन सा डायमेंशन है? हमेशा इलेक्ट्रिसिटी की बात हो, यानी इनोवेशन की बात हो, इंटरनेट की बात हो, ऑनलाइन की बात हो, तो वो कौन सा है? टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट. तो बताओ इसमें से आंसर क्या होगा? तो व्हेन वी टॉक अबाउट दिस देयर इज नो टेक्नोलॉजिकल हियर, देयर इज ओनली टेक्निकल. सो टेक्निकल बच्चे करके आए पर क्वेश्चन ही कैंसिल हो गया ये, क्योंकि टेक्निकल इज नॉट द राइट वर्ड. राइट वर्ड विल बी टेक्नोलॉजिकल. तो हेंस इन दैट ईयर 2024 में ये क्वेश्चन कैंसिल कर दिया गया था. सो द करेक्ट आंसर इज, हम बताएंगे, दैट इज टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट. हेंस द आंसर इज टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट. इज दैट क्लियर? तो 5 क्वेश्चन हो गए. क्वेश्चन 6. Which of the following is an example of economic environment? अच्छा ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था, जब भी हम इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स में जो जो चैप्टर थे ना, तो एक ट्रिक बता रहा हूं वो याद कर लो. ठीक है. बैंक, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, प्राइस राइज, फॉरेन एक्सचेंज, डिमांड सप्लाई, ठीक है, मनी सप्लाई, एवरीथिंग दैट इज द पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. तो ट्रेड यूनियन एक्ट तो हमने नहीं पढ़ा इकोनॉमिक में, पब्लिक डेट नहीं पढ़ा, पॉलिटिकल सिस्टम तो बिल्कुल नहीं पढ़ा. तो ऑफ कोर्स, सॉरी गलत ऑप्शन देख लिए. कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में तो हमने नहीं बात करी. पॉपुलेशन शिफ्ट्स आप कह सकते हो सर ये इको में आ सकता है. लाइफ एक्सपेक्टेंसी सर इको में आ सकता है. मनी सप्लाई भी इको में आ सकता है. आया ना? तो क्या लग रहा है मुझे बताओ. तो कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं है, ये तो आप पक्का बोलोगे, राइट? कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं होगा आंसर. ना पॉपुलेशन शिफ्ट्स गाइस ज्योग्राफी का भी पार्ट है, बट हम सिर्फ इको की बात कर रहे हैं. Specific economic concept is the money supply in the economy. Hence, money supply is the right answer. ठीक है. So we have to choose the best option, right? Sometimes 2 option can feel correct. So money supply is what the correct answer. Question 7. Again, which of the following is an example of legal environment? Legal environment यानी कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास किया है, अगर कोई एक्ट पास हुआ है, अगर कोई बिल प्रेजेंट हुआ है पार्लियामेंट में, दीज आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द लीगल एनवायरनमेंट. डेथ रेशियो, बर्थ रेशियो, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. प्रिवेलिंग पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट. पब्लिक डेट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. ट्रेड यूनियन एक्ट इज द करेक्ट आंसर. एक्ट की बात हो रही है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. क्वेश्चन 8. Which of the following does not characterize the business environment?
अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी है, you know all the characteristics of business environment, so just find the odd one out. So that's why I always say whatever are the headings, कि characteristics की सिर्फ heading भी याद करोगे ना, it will be very helpful for your MCQs. बोर्ड्स में मैं बोलता था आपको लिखना भी आना चाहिए क्योंकि आपको लिख के आना है, बट CUET में दिस इज द गेम, यू शुड नो द हेडिंग्स. इंटर रिलेटेडनेस था, एक्सटर्नल फोर्सेस था, रिलेटिविटी था, मार्केट ओरिएंटेशन नहीं था, क्योंकि ये कोई आपकी कैरेक्टरिस्टिक है ही नहीं बिजनेस एनवायरनमेंट की, ये तो बिजनेस स्ट्रैटेजी है. सो हेंस दिस इज द ऑड वन आउट बिकॉज दिस इज अ बिजनेस स्ट्रैटेजी, नॉट पार्ट ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट. हेंस क्वेश्चन नंबर 8 आंसर 3. समझ आया? क्वेश्चन नंबर 9, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स अंडर द प्लानिंग फंक्शन. तो प्लानिंग फंक्शन के अंदर आपको स्टेप वाइज याद रखना है. जब भी हमने प्लानिंग प्रोसेस पढ़ा, ऑर्गेनाइजिंग पढ़ा, स्टाफिंग पढ़ा, हर बार मैंने बोला कि आपको स्टेप याद रखने हैं. CUET में आता है, देख लो आया था. सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, डेवलपिंग प्रेमाइसेस, आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन. राइट, तो 1 यानी कि ACBD, ACBD. So option 2 is the correct answer. Yes or no? तो अगर आपको ये भी पता था ना कि पहले सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स आएगा, ए पहले आएगा, तो ये दो तो आप आंसर पहले ही एलिमिनेट कर देते थे. Yes or no? So easy था बहुत. क्वेश्चन 9. क्वेश्चन 10, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस. सो सिलेक्शन प्रोसेस का करेक्ट स्टेप आपको बताना है. क्वेश्चन नंबर 10. नाउ इसमें भी आप कैसे देख सकते हो कि पहले क्या आ सकता है, लास्ट में क्या आ सकता है. ठीक है, अब मेरी बात बताओ, मेरे को एक बात बताओ, सबसे पहले सिलेक्शन डिसीजन आ जाएगा क्या? दैट व्हाट इज द डिसीजन, विल यू बी सिलेक्टेड और नॉट? कैन इट कम फर्स्ट? नो. सो 1 and 2 कैन नॉट बी द आंसर. नाउ कैन एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, सबसे पहले इंटरव्यू होता है? नहीं, सबसे पहले आपका टेस्ट होता है. अगर आप टेस्ट में पास होते हो तो इंटरव्यू होता है. हेंस द आंसर विल स्टार्ट फ्रॉम बी. सो सिलेक्शन टेस्ट, देन सिलेक्शन, सॉरी माय बैड, एक सेकेंड. ओके, सबसे पहले आपका सिलेक्शन टेस्ट होता है, यानी कि सी है, नॉट बी. सिलेक्शन टेस्ट ही पहला होता है, यानी कि सी. उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है. उसके बाद चेक किया जाता है आपका बैकग्राउंड, कि आपका बैकग्राउंड वेरीफाइड है या नहीं. एंड फाइनली द सिलेक्शन डिसीजन विल बी टेकन. सो CBDA, CBDA यानी कि 10th का 4th इज द आंसर. इज दैट करेक्ट? ओके, सो हमारे 10 क्वेश्चन हो गए हैं. देख लो, इजी था पेपर, हार्ड नहीं था. ठीक है, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू दिस. क्वेश्चन 11th, it is a joint program of training in which educational institution and business firms cooperate. एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और बिजनेस, जैसे अगर कोई कॉलेज में, तो बोलते हैं ना, आपके भाई बहन अगर कॉलेज में है या आप किसी को जानते हो जो कॉलेज में, बोलते हैं ना हम इंटर्नशिप कर रहे हैं जी, वी आर डूइंग इंटर्नशिप. क्या है इंटर्नशिप? सो इट इज अ जॉइंट प्रोग्राम. कंपनी एक कॉलेज के साथ, यूनिवर्सिटी के साथ टाई अप करती है कि ठीक है, हम आपके स्टूडेंट्स को एक्सपोजर देंगे, हम उनको काम करना सिखाएंगे और उसके बदले हम थोड़ा सा उन्हें अमाउंट भी देंगे. सो दैट इज योर इंटर्नशिप ट्रेनिंग. Yes or no? So that is your internship training. That is the key line given in your NCERT. NCERT में exact line है. Question 12. Match list 1 and list 2. So you can see, okay, when we talk about matching the list 1 and list 2, okay, चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट कैंडिडेट. अच्छा, इसमें से आपको क्या पता है, आप वो बताओ. ओरिएंटेशन मतलब लोगों को इंट्रोड्यूस कराना. चलो ढूंढो. कैंडिडेट इज गिवन एन इंट्रोडक्शन टू सुपीरियर्स. अगर मुझे देखना होता तो मैं यही ढूंढता कि बी का तो 2 होगा. वी नो कि इंट्रोडक्शन देना मतलब ओरिएंटेशन हो रहा है. जब आप अपने ड्रीम कॉलेज में जाओगे तो आपका भी ओरिएंटेशन होगा, पहले आपको सब कुछ बताया जाएगा. सो बी का तो 2 होना चाहिए. So B2 यहाँ पे है, B2 यहाँ पे, मतलब second and fourth cannot be the answer. First point. Now if you see the next, और क्या पता है हमें? ट्रेनिंग मतलब स्किल सीखना, यानी C should be 4.
So here C is 4, so hence this is the correct answer. तो दो ऑप्शन से फिर से मैच द फॉलोइंग हो गया. तो नाउ मैच द फॉलोइंग की हमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है हर चैप्टर में से. क्वेश्चन नंबर 13. Which of the following is the process of incitement or inducing subordinates to act in a desired manner? तो हमेशा हमें पता है जब हम सबऑर्डिनेट्स को एक डिजायर्ड मैनर में एक्ट करने के लिए इंड्यूस करते हैं तो मतलब हम उन्हें मोटिवेट कर रहे हैं, राइट? तो दीज वर द कीवर्ड्स व्हाइल आई वाज टीचिंग यू इन द क्लास, दैट इंसाइटमेंट और इंड्यूस कर रहे हो अगर आप सबऑर्डिनेट को टू एक्ट इन अ डिजायर्ड मैनर, सो दैट इज इटसेल्फ इज द डेफिनेशन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ मोटिवेशन. हम यहाँ पे किस चीज की बात कर रहे हैं? So 13th answer is 1, that is motivation. तो देख लो आप, सिंपल डेफिनेशन से आंसर आ रहा है. Yes or no? 14th. Again correct sequence. Maslow need hierarchy theory. सबसे पहले हमारी क्या होती है? बेसिक नीड्स, फिजियोलॉजिकल नीड्स, फिर सेफ्टी नीड्स होती हैं. तो बेसिक नीड्स ढूंढो पहले. बेसिक नीड्स है ही नहीं, बाकी सारी है. तो सबसे पहली यहां पे क्या होगी? सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स, यानी बी शुड बी फर्स्ट. तो ओनली अगेन वन ऑप्शन, आंसर डन. 14-3. ठीक है, पहले बेसिक नीड्स होंगी, फिर हमारी बिलोंगिंगनेस नीड्स होगी, लव वाली नीड्स. ठीक है, उसके बाद हमारी एस्टीम नीड्स होंगी, प्राइड वाली नीड्स, कि मुझे आप लोगों ने अच्छा कमेंट करा मेरी टीचिंग के बारे में, आई फील सो गुड, राइट? एंड फाइनली सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. इसको मैं कैसे याद दिलाता हूं? मोक्ष की प्राप्ति, कि अब आई एम सेटिस्फाइड विद माई लाइफ, नाउ आई हैव बिगर गोल्स टू अचीव इन माई लाइफ. सब कुछ मेजर मैंने कर लिया है. So that is what? That is the 14th question, answer 3. 15th. Dash is a process of influencing. Now see, there in the previous question we saw the inducement to act in a desired manner. Now we are saying influencing the behavior of the people and making them strive voluntarily towards the achievement. अब क्या कर रहे हैं हम? उन्हें इन्फ्लुएंस कर रहे हैं. एक लीडर होता है ना, वो इन्फ्लुएंस करता है अपने सबऑर्डिनेट्स को, अपनी टीम को. So hence लीडरशिप इज द करेक्ट आंसर. तो यहां पे कीवर्ड्स काम आते हैं कि लीडर इन्फ्लुएंस करता है ताकि लोग ऑर्गेनाइजेशन गोल्स में अचीव करें, और मोटिवेशन एक्ट्स हेल्प्स टू एक्ट यू इन अ डिजायर्ड मैनर. सो दैट इज द की डिफरेंस. यस और नो? क्वेश्चन 16th. Which of the following is not a limitation of controlling? क्या पूछा है? Not. So not is the main word here. कि इसका मतलब 3 limitations are given, so that is not the correct answer. Which is not a limitation, that is the correct answer. So costly affair, controlling requires cost. CCTV लगाने पड़ते हैं, so costly तो है. So yes, it is a limitation. So it is not the answer. Resistance from employees, that yes, people resist कि आप हर टाइम CCTV में हमें देखते रहते हो, तो again problem. इंश्योर्स ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, बट उस सीसीटीवी से आप लोग काम भी तो अच्छे से करते हो कि हमें कोई देख रहा है, चलो काम करते हैं. सो दैट इज व्हाट? ऑर्डर एंड डिसिप्लिन. सो इज दैट अ लिमिटेशन? नो, दैट इज अ बेनिफिट. सो हेंस दिस इज द करेक्ट आंसर बिकॉज इट इज नॉट अ लिमिटेशन. यस और नो? इट इज नॉट अ लिमिटेशन. इज दैट क्लियर? Seventeenth. Never seen 17. Okay. Identify the correct sequence of controlling. अब sequence मतलब CUET was obsessed with match the following and sequence question again and again. Can you see that? So analyzing deviations, measurement of actual performance, setting up standard, comparison of actual performance. अच्छा मुझे एक पहली बात बताओ कि आप सीधा ही डेविएशन एनालाइज कर दोगे क्या? सीधा ही आप एक्चुअल परफॉर्मेंस को कर दोगे? नहीं, सबसे पहले हम स्टैंडर्ड सेट करते हैं. So we know the answer will start from C. So only one option has that. So again, from one option, answer is done. So common sense से भी आप कर सकते थे, हाँ या ना? So setting standards, measurement of actual performance, comparison of actual performance, and analyzing the deviation. And final क्या था? Taking corrective action. ठीक है. Question 18th. Only a 5% increase in the labor cost may be more troublesome than a 15% increase in postal charges. यानी कि अगर आपकी लेबर की कॉस्ट जो कि आपके लिए बहुत क्रिटिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो 5% बढ़ गई, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए इशू,
देन 15% इंक्रीज इन पोस्टल चार्जेस। आप थोड़ा बहुत पोस्ट करते हो, उस पर थोड़ी बहुत चार्जेस बढ़ गए, दैट इज नॉट मैटर, दैट डज नॉट मैटर मच। बट लेबर आपको रोज चाहिए, उस पर 5% भी बढ़ गया, दैट विल अफेक्ट योर फाइनेंसेस अ लॉट। आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट पॉइंटेड आउट। तो क्या डेविएशन की बात हो रही है? नहीं। क्या हम इको पढ़ रहे हैं? ब्रेक इवन एनालिसिस की बात हो रही है? नहीं। क्या हम क्रिटिकल पाथ मेथड, ये तो हमने सुना ही नहीं। तो यस, द करेक्ट आंसर इज क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। यानी कि मैनेजर्स फोकस ऑन द क्रिटिकल एरियाज। मैनेजर्स focus on the critical areas even if the deviation is small। यानी कि सिर्फ 5% इंक्रीज हुआ है, बट दिस इज अ क्रिटिकल एरिया, सो वी कांट say that ignore this. This is very important, you cannot ignore this. So hence you have to focus, and hence this is the critical point control. Is it clear? तो हमने दो चीजें पढ़ी थी, KRAs और CPCs, right? याद आ रहा है? All right. 19th. Identify the function performed by the financial market. Okay, so ये भी मैं mention कर दूं, आंसर मैं बिल्कुल बताऊंगा, that in the last, that is 2025 पेपर में this chapter was related, right? So let's see, 26 में आता है नहीं, but still हमें तो solve करना है, तो I will tell you the answer for sure. Holders of assets can readily sell their financial assets through the mechanism of financial market. यानी कि आप अपने assets फाइनेंशियल मार्केट में इजीली सेल कर पाते हो, यानी कि आप उनको सेल करके आराम से आप कैश प्राप्त कर सकते हो, आपको पैसा मिल सकता है उससे आराम से बेच के। तो यानी कि इट इज वेरी हाईली लिक्विड। तो लिक्विड का मतलब ही होता है विच कैन बी इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश, राइट? सो हेंस रिड्यूस कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन की, कोई कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन की बात हो रही है? नहीं हो रही। क्या प्राइस की डिस्कवरी की बात हो रही है? नहीं हो रही। मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स, की सेविंग्स मोबिलाइज हो रही हैं जी, राइट? हम बहुत अच्छे से यूज कर रहे हैं? नहीं। We're talking about providing liquidity to the financial assets because they are readily convertible. So this readily sell word is the important here. That is the key word. Is that clear? 19 question done. Question number 20. If any of the parties are not satisfied by the order of the dash, they can appeal against such order to the State Commission on the grounds of facts within the period of 45 days. बहुत easy है। मैंने आपको बताया था दैट कंज्यूमर रेड्रेसल के 3 तरीके होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन। यानी कि if someone is not satisfied by the order of the district commission, they can appeal where? Of course, they will appeal first to the state commission. If someone is not satisfied with the state commission, they can appeal with the national commission. If still someone is not satisfied with the national commission, can they appeal more? Yes, they can appeal to the Honorable Supreme Court of India. तो ये आपको बताया था क्लास में, राइट? तो we are saying in this question that अगर आप कहीं से खुश नहीं हो तो आप स्टेट कमीशन पे जाओगे। तो हम किसके बाद स्टेट कमीशन पे जाते हैं? आफ्टर द डिस्ट्रिक्ट, देन वी गो टू द स्टेट। सो हेंस हियर यू विल राइट द डिस्ट्रिक्ट कमीशन, DC। दैट इज 20 क्वेश्चन, ऑप्शन 1। इज दैट क्लियर? समझ आ रहा है? मजा आ रहा है? ठीक है। 21, आइडेंटिफाई द इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिस्कस्ड इन द फॉलोइंग लाइन्स। इस लाइन में कौन सी कंज्यूमर प्रोटेक्शन की इंपॉर्टेंस की बात हो रही है? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस मेक्स मनी बाय सेलिंग एंड प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द कंज्यूमर। thus consumers form an important group among the many stakeholders, like other stakeholders, their interest has to be well taken care of। यानी कि yes, कंपनीज को, फर्म्स को अपना प्रॉफिट कमाना है, बहुत बढ़िया, बट उनको सब स्टेक होल्डर्स का ध्यान रख रहा है, उन्हें ऐसे ही सोसाइटी का भी ध्यान रखना है। कैसे? क्योंकि आप कंज्यूमर का ध्यान रख रहे हैं। सो मॉरल जस्टिफिकेशन नहीं, बिजनेस यूज सोसाइटी रिसोर्सेज, क्या लग रहा है? क्या इसकी इंपॉर्टेंस है? यस, बिजनेस इज यूजिंग सोसाइटी रिसोर्सेज, बस ये क्या इंपॉर्टेंस बता रहे हैं? नहीं।
लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस, क्या इंपॉर्टेंस बता रहा है? नहीं. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यस. That consumers form an important part and that's why their interest has to be well taken care of. So yes, this is the social responsibility of the firm to take care of the society, including the consumers. So hence, social responsibility is and was the correct answer. Question number 22. Identify the consumer right. तो हमने consumer rights पढ़े थे. Right to be heard, right to choose, right to consumer education, right to seek redressal. Identify the consumer right. The consumer has the freedom to access variety of products at competitive prices. This implies that the marketer should offer a wide variety. यानी कि कंज्यूमर के पास ऑप्शन है बहुत सारी वेराइटी देखने का, चूज करने का, राइट? कौन सा था? राइट टू सेफ्टी. क्या आर वी टॉकिंग अबाउट दैट सेफ्टी की बात हो रही है? नहीं. क्या यहाँ पे ये बात हो रही है कि हम केस कर देंगे? आप हमें बहुत सारी क्वालिटी दे रहे हो, इस बात पे मैं केस करूंगा? ऑफ कोर्स नॉट. क्या आप एजुकेशन की बात कर रहे हैं कंज्यूमर की? नहीं. वी आर टॉकिंग अबाउट राइट टू बी अश्योर्ड और स्लैश इट इज आल्सो नोन एज राइट टू चूज. So they are assured that they are given a wide variety. So that is again a right of the consumer. Yes or no? ठीक है. Next. Again telling you, this was deleted in the previous syllabus, but still I will tell you the answer. Identify the method of flotation in primary market. कि प्राइमरी मार्केट में कौन से मेथड की बात हो रही है जहां पे कंपनी सिक्योरिटीज किसको करती है? एक एग्रीड प्राइस पे ब्रोकर को बेच देती है. कंपनीज एग्रीड प्राइस पे एक ब्रोकर को बेच देती है. सो द करेक्ट आंसर इज द ऑफर फॉर सेल. अब ऑफर फॉर सेल में क्या होता है? कंपनी एक ब्रोकर को बुलाती है, उसको फिक्स प्राइसेस पे शेयर्स बेच देती है और वो ब्रोकर उसको आगे पब्लिक में बेचता है. So company sells security. Please write offer for sale means company sells securities in bulk to the broker and broker resells that securities to the public. So that is offer for sale. Done. Question number 23. So we will do till 25 today. Next 25 we will do in the next part. Okay. So question 24. Again match the following guys. Favorite. ठीक है. Again answerability, delegation, authority, responsibility. जो भी पता है इसमें से उसको ढूंढो. मान लो मुझे डेलीगेशन पता है कि हाँ मैं अपने सबऑर्डिनेट को कुछ काम दे रहा हूं. सो आई विल ट्राई टू फाइंड दैट कि मैं कुछ काम दे रहा हूं. राइट टू कमांड, ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म टास्क, अकाउंटेबिलिटी, बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की. नहीं समझ आ रहा सर, आ ही नहीं रहा, क्या करें अब? ठीक है, फिर मुझे ये पता है कि अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है कि बीइंग आंसरेबल. सो आई एम वेरी आंसरेबल टू समथिंग, आई हैव दैट अकाउंटेबिलिटी ऑन मी, राइट? यस और नो? अकाउंटेबिलिटी मीन्स बी आंसरेबिलिटी. सो सी का 1 होगा, मुझे ये पता है. सो C1 ढूंढो. सो C1 इज इन 1 ऑप्शन ओनली, सो हेंस 24 इज 4th. अगेन मैं कंफ्यूज हो रहा था बट तब भी मैंने एक ऑप्शन से सॉल्व कर दिया. ऐसा सबके साथ होता है. इट इज द ह्यूमन कैलिबर, बट द कैलिबर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स दैट यू डोंट पैनिक. हमें बस पैनिक नहीं करना. एक नहीं मिला तो क्या हुआ, हम दूसरे से कर लेंगे. यस और नो? सो यू कैन चेक ऑल्सो. A3 राइट टू कमांड इज द अथॉरिटी. B4 ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म टास्क इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी. C1 एंड D2 यानी कि अगर डेलीगेशन मतलब हायरार्की ही बन रही है ना कि आप किसको, सबऑर्डिनेट्स को अपना काम दे रहे हो, सो डेलीगेशन, राइट? सो 24 क्वेश्चंस डन. सो फाइनल क्वेश्चन कमिंग ऑन योर स्क्रीन नाउ. आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस. अगेन सीक्वेंस वाला क्वेश्चन ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन. प्लानिंग का भी पूछ लिया इन्होंने, कंट्रोलिंग का भी पूछ लिया, ऑर्गेनाइजिंग का भी पूछ लिया, सिलेक्शन टेस्ट भी पूछ लिया. हर फंक्शन से इन्होंने पूछा था उस दिन. सो हेंस दीज आर सो इंपॉर्टेंट गाइस. इजी है और इंपॉर्टेंट भी है. वेरी स्कोरिंग. मुझे बताओ, सबसे पहले आप अथॉरिटी रिपोर्टिंग रिलेशनशिप बना सकते हो क्या? नहीं. सबसे पहले हम वी विल आइडेंटिफाई, डिवाइड द वर्क. सो द आंसर विल स्टार्ट फ्रॉम सी. हेंस अगेन 4th इज द करेक्ट आंसर. सीधा एक ऑप्शन से मैंने कर दिया. Yes or no? So you can see identification and division of work. Then we create the department, departmentalization. Then we assign the duties, and finally we establish the authority and reporting relationships. Is that clear? So before you come to the next part,
So I want you to answer the next question. We will start from there only, but I want to see how many of you are very aware and you guys are attempting. So 26 का आंसर जरूर आप मुझे बताओगे comments में, right? So I am showing you the question. Okay, try to answer this. The formal organization can be better understood by a study of its features, which are as follows. यानी कि formal organization के features दिए हैं. Which of the following options are correct? यानी कि इन 4 ऑप्शन में से फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या क्या सही है. That is the question for you. Only one classwork / homework, because we will start from here only in the next part. So I really hope whatever we have discussed, the first 25 questions, the analysis, the answers, it will help you a lot to perform better in this year's exam. And of course, if you have any issue, any doubt, don't fear, RG sir is always here for you. So this was it for today's session. The first half of the BSc 2024 paper is done. So you guys keep on studying like this. ऐसे ही पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो. Self belief, self confidence, दोनों करते रहो. I'm Rahul Gujral. Will meet you definitely in the part 2. So till the part 2, please attempt 26. So till then, bye bye. Jai Hind and take care. अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें.